तारीफ कर हमारी वीडियो में। पेमेंट ऑफ टैक्स स्टडी नोट 8 जीएसटी आपके मॉड्यूल के पेज नंबर 387 पे है ये टॉपिक. ओपन दैट. Before we understand the payment of tax under GST, I can say there are two sections, section 49 and section 50 of the CGST Act, which is to be understood properly. सेक्शन 49 जो है वो थोड़ा बड़ा है, लंबा सेक्शन है, उसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शन है. सेक्शन 50 जो है वो इंटरेस्ट का है कि अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे हो सकता है, एक जनरल आइडिया पहले आप ले लीजिए. पेमेंट ऑफ टैक्स ऐसे होगा कि जीएसटी में सब कुछ ऑनलाइन है. सो नाउ you have to first deposit the money into electronic cash ledger, and from that cash ledger you pay the money to the government. Now question is how to deposit money into that cash ledger. Then there are various modes to deposit that money. Now which are those modes? One, you can use your net banking, debit your account, business account, and credit the electronic cash ledger account. Second is do the RTGS. Third is NEFT. Fourth is by any other mode of payment you can deposit over there, but definitely there would be some electronic mode of payment. Then once you deposit that money into electronic cash ledger, from that cash ledger you will pay to the government. But if I talk about the exact scenario, then I can say, for example, for a January month, there is a output GST payable 10 lakh rupees based on your GSTR1. Your input tax credit based on your GSTR2 pertaining to January is suppose 6 lakh. So 10 lakh आपको टैक्स पे करना है जनवरी का. 6 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है आपके पास. अब बचे कितने? 4 लाख. वो 4 लाख आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करेंगे. तो वो 4 लाख आपके अकाउंट में पहले जमा करने पड़ेंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा होंगे बाय दिस मोड्स: नेट बैंकिंग, RTGS, NEFT, fine, or any other mode through which you can deposit that money into your electronic cash ledger. And then by utilizing that cash ledger you will pay your liability. My recent case of this 10 lakh output GST payable, 6 lakh ITC. So what I will do, I will first utilize my credit ledger to pay my output tax. Then after anything left, means I will utilize that 6 lakh of ITC first. Then if anything pending, that remaining 4 lakh rupees, that 4 lakh rupees I will pay by my electronic cash ledger. And before I pay from my cash ledger, I have to deposit. I have to credit into my cash ledger by these various modes of payment. Now, when to do the payment? Payment of tax is to be made on or before 28th of the next month pertaining to a tax period. Means suppose your tax period is monthly basis, suppose January, then you have to pay tax for January on or before 28th February. 20 फरवरी से पहले आपको जनवरी का टैक्स पे करना है. Suppose you are a SSC who has to pay tax on a quarterly basis, like composition dealer, then that SSC has to pay the tax on or before 20th of the month, next month pertaining to the quarter for which you have to pay the tax. Means suppose January to March quarter,
And transaction per when you have to pay the tax pertaining to that January to March quarter, you have to pay on or before 20th April. 20 अप्रैल से पहले आपको January to March quarter का टैक्स पे करना है. So these are the provisions pertaining to your payment of tax. Yes, composition dealer वालों को कुछ लोगों के माइंड में क्लिक हुआ होगा. ये composition dealer वालों को तो सर वो डेट अलग है ना, 20 तारीख नहीं है, 18 है तो 18. Whatever written into the act I can say, but whatever is the provision, you have to pay tax on or before that date. Suppose you fail to do that on or before that date, you fail to pay the tax, then section 50 will trigger, and that section 50 says that you have to pay interest. That is the interest rate also 18% on your outstanding payment of tax. So this is the section 49 pertaining to payment of tax. Now I have various sources here. One is our institutes module, one is CA Institutes module, one is our reference book, and considering all these three, we will study. So let us start. See, your module says this: payment of tax, payments to be made. Let us see. Computation of tax liability and payment. Under GST, the tax to be paid is mainly divided into three heads. आपको मालूम है जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी है. ये एसजीएसटी के और में एक और भी है, यूटीजीएसटी, इफ यू रिमेंबर, यूनियन टेरिटरी जीएसटी. A registered person is required to make the GST payment. अब रजिस्टर्ड पर्सन को ही ये जीएसटी का पेमेंट करना है. उसका मीनिंग दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड, दे आर आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ सेक्शन 49. अब देखो, a registered dealer is required to make GST payment with if GST liability exists. So payment कब होगा? Make GST payment if GST liability exists. अगर आपने कोई सेल किया होगा या सप्लाई किया होगा या सर्विस प्रोवाइड की होगी, सप्लाई में सब आ जाता है. तो अगर आपने सप्लाई किया होगा और वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होगा तो आपकी जीएसटी लायबिलिटी एग्जिस्ट होगी. एंड अगर जीएसटी लायबिलिटी एग्जिस्ट होगी तो आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा. फिर आगे, अगर आप परचेज करते हो जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे है तो वहां भी आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा. रजिस्टर्ड डीलर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम. थर्ड, ये रेगुलर डीलर आ गए, ये आरसीएम परचेज वाले आ गए. अब यहाँ ई कॉमर्स वाले आ गए. ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, आपको मालूम है ना उसका कलेक्ट एंड पे टीसीएस, उसका टीसीएस है. अब आज हम टीडीएस और टीसीएस के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में. फिर है डीलर्स रिक्वायर्ड डिडक्टिंग टीडीएस, ये भी एक कंसेप्ट है. टीडीएस वाला कंसेप्ट किसका है कि अगर गवर्नमेंट किसी को पे करती है 2.5 लाख से ज्यादा इन ईयर तो सेक्शन 51 के हिसाब से वहां टीडीएस कटना चाहिए एंड सेक्शन 52 के हिसाब से यहाँ टीसीएस कटना चाहिए. अब यही चीज मैं आपको रेफरेंस बुक में दिखाता हूँ. अब देखो, ये रेफरेंस बुक में ये जो चैप्टर है उसमें मैं अगर ध्यान से बताऊं तो देखो, ये टीडीएस मींस 51 नंबर का सेक्शन आ गया. अगर मैं टीडीएस की बात करूं तो सेक्शन 51 है. टीसीएस की बात करूं तो सेक्शन 52 है. ठीक है. फिर अगर आपने डिलेड पेमेंट किया तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, उसका सेक्शन है 50. एंड आपको कैसे पे करना है टैक्स, उसके लिए है सेक्शन whose title is section number 49. अब ये 49 में ये पॉइंट्स आएंगे: इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर. मैंने अभी आपको बताया था कि आपका लायबिलिटी लेजर बता रहा है सपोज 10 लाख का लायबिलिटी है. आपके पास क्रेडिट कितना पड़ा है? 6 लाख. तो ये 10 लाख पे करना है, उसके लिए आप पहला यूज करेंगे ये 6 लाख का, है ना. जो बाकी का बचा 4 लाख,
वो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करेंगे और उसमें से पे करेंगे। तो ऐसे करके आपकी ये जो लायबिलिटी है 10 लाख को पे की जाएगी। अब ये CPIN, CIN, BRN एंड EFPB ये सब है ना टर्म्स है जो जब आप मोड ऑफ पेमेंट करते हो तो उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उसके रिलेटेड कुछ एब्रिविएशंस है, ये CPIN, CIN एक्सेट्रा, तो वो पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में पूरा ये है। यहाँ TDS देखो, TDS तो रजिस्टर्ड पर्सन्स लायबल टू डिडक्ट TDX, बस यहाँ बट यहाँ कौन आते हैं, ये रजिस्टर्ड पर्सन में कौन आते हैं, तो यहाँ जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर यूनियन टेरिटरी है एक्सेट्रा। मींस इन शॉर्ट में इधर लिख सकता हूँ कि गवर्नमेंट वाले सब है ना ये प्रोविजन में आ रहे हैं, ठीक है, सब गवर्नमेंट वाले इधर आते हैं, ठीक है। और इधर जो TCS है उसमें सब लोग कौन आते हैं, ई-कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं, ओके। तो ये चैप्टर इधर हमको ये बता रहा है कि ये सब चीजें हमको पढ़नी है, लेट अस सी। अभी ना सेक्शन 49 से मैं जा रहा हूं, मैंने आपको सिक्वेंशियली बता दिया कि सेक्शन 49, 50, 51, 52 ये चार चीजें हम पढ़ेंगे ये चैप्टर में। तो उसमें सेक्शन 49 करते हैं। चलिए स्टार्ट सेक्शन 49। कोई कुछ अभी म्यूट नहीं है आई थिंक आप में से, अभी किसी का आवाज आया, चिरायु भाई म्यूट हो जाओ, चलो मैंने कर दिया आपको, ओके। लेट अस सी सेक्शन 49। अबे ना 49 को अगर डायरेक्ट में देखना है तो इधर बहुत अच्छा दिया है, इफ आई वांट टू शो यू तो इधर बहुत अच्छा है, सी वालों के मॉड्यूल के अंदर बहुत अच्छे से सेक्शन 49 दिया हुआ है, ये रहा देखो, सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट। तो ये देखो 49 1 2 3 4 5 6, ये 5 वाला बहुत लंबा सेक्शन है, फिर 6, फिर 7 8, 8 के अंदर भी 3 पॉइंट है और 9, और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशंस। मीन्स आप समझो तो 4 पेज है इधर के, एंड प्लस ये जो सेक्शन 49 है उससे जुड़े हुए हैं रूल नंबर 85 लायबिलिटी लेजर, फिर 84 आएगा, देखते जाना, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी 86 क्रेडिट लेजर, एंड लास्ट में 87 आएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो ये 3 रूल है जो इससे जुड़े हुए हैं, ये सब रूल इधर पहले है ना डिटेल में दे दिए, मीन्स डायरेक्ट के फॉर्म में, एंड उसके बाद ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। मीन्स आप देखो तो सही, इवन आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच ट्रांजैक्शन ये भी रूल उससे जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ से एनालिसिस दिया है, ओके। तो लेट अस सी, मेरे को तो इरादा था आपको दिखा दूं कि भाई सेक्शन 49 का कंटेंट क्या है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 49 इधर से, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट, सेक्शन 49 ये टाइटल है। अब क्या है, सब सेक्शन 1 क्या बता रहा है, तो every deposit to be made toward tax, every deposit made, मैं आपको यहाँ थोड़ा एक मिनट, एक मिनट, इधर से ही दिखाता हूँ, उसका रीजन है कि आई कैन नॉट डू एनी एडिटिंग ओवर देयर। तो चलो पहले ये देखते हैं, सेक्शन 49 इधर से देखते हैं, 49(1) अमाउंट डिपॉजिटेड टू बी क्रेडिटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इसमें बताया है कि जितनी भी डिपॉजिट है, एवरी डिपॉजिट जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में करोगे इन अ कैश लेजर,
shall be done by, देखो every deposit made towards, अब है ना ये 5 टाइटल है, ये 5 रीजन की वजह से आप है ना पेमेंट करते हो। 5 रीजन कौन कौन से है? एक, आप तो या आपको टैक्स पे करना है, या फिर आपको इंटरेस्ट पे करना है, या फिर आपको कोई पेनल्टी पे करनी है जीएसटी की, या फिर आपको कोई फीस पे करनी है जीएसटी की, लेट पेमेंट का फीस होता है। और एनी अदर अमाउंट क्या होती है? एनी अदर अमाउंट में आता है कि कोई भी अदर अमाउंट देन दिस, ये 4 नाम के अलावा का कुछ भी। सर इसके अलावा होगा क्या? सपोज डिपॉजिट या कोई भी चीज आपको पे करनी है अंडर जीएसटी, तो ये 5 टाइटल है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड एनी अदर अमाउंट। कोर्ट का जजमेंट आया और आपको कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ा तो वो अदर अमाउंट में जाएगा। तो ये 5 चीजें आप पे कर सकते हैं। Every deposit made towards tax, interest, penalty, fees or any other amount by a person, by what? Internet banking। ये आप कैसे करोगे? इंटरनेट बैंकिंग से करोगे, या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ये भूल गया बोलना। फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम आरटीजीएस एंड अदर मोड। इसके अलावा का कोई भी मोड होगा, ठीक है, जो अलाउ होगा तो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। इट शैल बी क्रेडिटेड, ये सब रुपए कहाँ जमा होंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा होंगे ऑफ सच पर्सन। ठीक है, अब पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रिफर टू इन सेक्शन 49(1). सेक्शन 49(1) में जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात की गई है वो क्या है? तो इट कंटेन्स, तो एक ऐसा लेजर है विच कंटेन्स अ समरी ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स, जो जो आपने जमा किया वो, एंड ऑल द पेमेंट्स, मींस वहां से जो पे किया है वो, मेड बाय अ टैक्स पेयर, मींस इट इज लाइक अवर बैंक अकाउंट which is maintained by GST department on GST portal. Electronic cash ledger is maintained, ये कहाँ मेंटेन होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? ऑन द जीएसटी पोर्टल। दूसरा पॉइंट, आईटीसी टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब ये क्या है सर? वन बाय वन आप देखते जाओ, आपको है ना पूरा सिस्टम समझा रहे हैं। तो 49(1) में कहा है कि कैश लेजर में कैसे जमा करोगे। 49(1) का टाइटल क्या है कि भाई आप कैश लेजर में कैसे जमा करोगे, ये बात इधर समझाई है। अब आगे सेकेंड पॉइंट है, उसमें आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रुपए कैसे जमा होते हैं। तो है ना, मैंने आपको उसके लिए कुछ चीजें बताई है। इफ यू रिमेम्बर ड्यूरिंग क्लास सेशंस आल्सो आई हैव एक्सप्लेन नंबर ऑफ टाइम्स। क्या है? तो सपोज आपको, आपने जो भी सेल किया, सपोज उसका आपने रिटर्न भरा GSTR1, आपने सेल किया जनवरी महीने में, तो 10 तारीख से पहले आप GSTR1 भरोगे, फरवरी की 10 से पहले, और उसके अंदर जनवरी के हर बिल की डिटेल डालोगे, और उसमें आप लिखोगे ये सेल हुआ तो उस पर इतना जीएसटी लायबल टू बी पेड है ना। तो उससे 10 तारीख को आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक GSTR1 में आपका एक इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा कि भाई इतना ट्रांजैक्शन हुआ है जनवरी महीने में, उसमें इतने रेट और इतनी वैल्यू है, ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट के हिसाब से इतना जीएसटी पेएबल है। तो ये जनवरी का आप फरवरी के 10 से पहले आप कर लेते हो। फिर आप GSTR2 भरते हो। GSTR2 में क्या होता है? तो जो आदमी अपना GSTR1 भरेगा, उसमें वो जितने बायर्स मींस जिन लोगों को उसने बेचा उसके नाम लिखेगा और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, दैट वुड बी ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR2। In GSTR2 of the buyer, suppose Reliance is the seller and he sold suppose goods to 10 buyers, and 10 buyers he entered the value, he entered the rate, he also entered the registration number of the buyers. After Reliance file his its GSTR1, those 10 buyers will get these details into their own GSTR2. This buyer, when check his GSTR2, he will get the details which is entered by his supplier. ठीक है, तो और उसका उसको क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। तो GSTR2 से क्रेडिट मिलता है, तो उसके बारे में यहाँ डिटेल बताई गई है। लेट अस सी। The input tax credits, as self-assessed in the return of the registered person, shall be credited to credit ledger.
मीन्स आपका जो आईटीसी है वो यहाँ क्रेडिट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 41। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है, तो जो 49 में कहा गया है उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोलते हैं, ऐसा सेक्शन 2 क्लॉज 46 में बताया गया है। फिर है यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट, यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये 49(3) में क्या है, आपके पास जो अमाउंट है उसका आप कैसे यूटिलाइजेशन करोगे, फाइन। So the amount available in electronic cash ledger may be used for making the payment toward tax, interest, penalty, fees or any other payment. ये 5 reasons under this act or rules made thereunder in such manner and subject to such conditions within the time as may be prescribed. ये टाइम प्रिस्क्राइब कौन सा किया गया है कि दूसरे महीने की 20 तारीख तक। हेड वाइज इंफॉर्मेशन टू बी मेंटेन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। हेड वाइज इंफॉर्मेशन मीन्स एक माइनर हेड होता है एंड एक मेजर हेड होता है, तो ये हेड वाइज आपको इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है। अब विच आर द मेजर हेड्स, तो आईजीएसटी इज द मेजर हेड। अब ये आईजीएसटी के अंदर ये पांचों चीजें आ जाती है, कौन कौन सी, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स। फिर सीजीएसटी की ये 5 चीजें, फिर एसजीएसटी, यूटीजीएसटी की ये 5 चीजें, एंड फिर सेस की ये 5 चीजें। सेस की अमाउंट, सेस पे नहीं भरा उसका इंटरेस्ट, सेस का पेनल्टी, सेस का फीस, लेट पेमेंट का, सेस का कोई अदर अमाउंट। द सेम वे आईजीएसटी का टैक्स अमाउंट, आईजीएसटी अगर लेट भरा तो उसका इंटरेस्ट, आईजीएसटी पे कुछ पेनल्टी लगी तो वो, आईजीएसटी कोई फीस भरनी है तो वो, एंड सेस। तो ये सब चीजें हैं, ओके। तो ये है मेजर हेड्स एंड दूसरे है माइनर हेड्स। मेजर हेड्स में क्या है, ये 4 आइटम, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तीसरा है यूटीजीएसटी। वैसे तो 5 आइटम हो गई, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, फिर चौथा है आईजीएसटी, एंड लास्ट कौन सा है, लास्ट है सेस, कॉम्पनसेशन सेस। ये लग्जरियस आइटम्स पे लगता है, और ये 5 आइटमों के माइनर हेड होंगे क्या, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स। मीन्स आपको अपना जो भी GSTR1 भरो वो हेड वाइज मेंटेन करना है, मेजर हेड एंड माइनर हेड। अब आगे बढ़ते हैं। हेड वाइज यूटिलाइजेशन इज परमिसिबल। मीन्स क्या कि सपोज CGST का ITC है, उसका यूज आप CGST भरने के लिए पे कर सकते हो। IGST का ITC है, वो IGST पे करने के लिए यूज कर सकते हो। UTGST का ITC है, वो UTGST पे करने के लिए यूज कर सकते हो, ऐसा। तो head wise utilization is permissible. The amount available in electronic cash ledger can be utilized for payment of any liability for respective major heads, ठीक है, और एंड माइनर हेड्स। एक मिनट है, सब लोग अब देखते जाओ। एपरेंटली सुनने में थोड़ा और लगेगा, सॉरी पढ़ने में, बट है ना, जब सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेजर हेड, माइनर हेड क्या होता है। और सपोज हम एक्स लिमिटेड की बात करते हैं, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड के पास उसका क्रेडिट पड़ा है, आईटीसी पड़ा है, आईटीसी। और आईटीसी में आपको मालूम है कि भाई कि कौन कौन सी अमाउंट का आईटीसी होता है, सीजीएसटी, दूसरा आई एसजीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी, चौथा है यूटीजीएसटी, एंड पांचवा है सेस, ठीक है। ये टैक्स है। अबे ना, ये सीजीएसटी की अमाउंट, ये क्या हो गया, मेजर हेड। ये क्या हो गया आपके मेजर हेड। इतनी आईटीसी अगर आपके पास पड़ी है, सपोज सभी में 1-1 लाख पड़े। अब आपका यहां आता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स सभी का 1-1 लाख पड़ा है, आप समझ लीजिए, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब आपका आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स में भी मैं मेजर हेड लिखता हूं।
मीन्स आपने जो सेल किया उस पे कितना CGST भरना है, इसमें भी CGST है, इसमें भी SGST है, इसमें भी IGST है, इसमें भी UTGST है और इसमें भी सेस है। ठीक है, अब सब अलग अलग लायबिलिटी है। इसका 80,000 है, इसका भी 80,000 है, ये 1.4 लाख है, ये सपोज आपका 0.7 लाख है। ठीक है, एंड सपोज ये आपका 0.8 लाख, ये आपकी लायबिलिटी है आपके सेल्स के बेसिस पे। ये इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स सब कुछ एक्स लिमिटेड का। अब ये है ना, ये टैक्स की अमाउंट है सब। ये क्या है? टैक्स की अमाउंट, टैक्स। ये माइनर हेड चालू हो गया, बट साथ साथ सपोज यहां इसको इंटरेस्ट भी पे करना है। सपोज इंटरेस्ट इधर आता है 20,000, इधर भी 20,000, इधर सपोज आपको क्या बोलते हैं इसको, फीस पे करनी है। जीएसटी में फीस का भी कंसेप्ट 0.3 लाख। ठीक है, तो ये यहां मैं माइनर हेड ले रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ये जो 1 लाख की क्रेडिट है, उसका यूज मैं ये 1.5 लाख एज वेल एज 0.2 लाख के लिए कर सकता हूं कि सिर्फ ये 1.5 के लिए कर सकता हूं? ये क्वेश्चन है। अब है ना, इसके सेंस में अब आप पढ़िए। अब आप वो जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा उसको फिर से पढ़िए। यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट दे वांट टू टॉक। ये एग्जांपल को देखो आप सब लोग। कैन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इज अवेलेबल अंडर द माइनर हेड ऑफ टैक्स। आपके पास माइनर हेड ऑफ टैक्स के 5,000 रुपए पड़े थे अंडर द हेड SGST और UTGST। मीन्स SGST UTGST के 5,000 इधर पड़े थे। आप सोचो, यहाँ SGST UTGST में 5,000 यहाँ पड़े थे आपके पास क्रेडिट। आगे देखते हैं। Now the taxpayer has a liability of 800 for minor head interest under the same major head as GST UTGST. Means ये SGST and UTGST में इंटरेस्ट की लायबिलिटी है 800 रुपया सपोज, और क्रेडिट इधर पड़ी है SGST UTGST। ठीक है, अब क्या कहते हैं? Since there is no amount available under the minor head, interest under the major head SGST UTGST, therefore interest payment cannot be made from the amount available under the tax or of the same major head. अब यहाँ आप देखो, यहाँ आपके पास सिर्फ टैक्स पड़ा था, यहाँ कोई इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं पड़ी थी, तो क्रेडिट में इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर ये इंटरेस्ट, यहाँ भी जो इंटरेस्ट पे करना है वो आप कभी भी यहाँ की जो आईटीसी है क्रेडिट की, टैक्स की, तो टैक्स की आईटीसी का यूज इंटरेस्ट पे करने के लिए नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट आपको कैश में पे करना पड़ेगा, मींस यूटिलाइजिंग द कैश लेजर। बट ये जो 1 लाख यहाँ जो भी आईटीसी है उसका यहाँ का आउटपुट टैक्स मींस आईटीसी टैक्स की, तो आउटपुट टैक्स का भरने में उसका यूज हो सकता है। तो दैट इज व्हाट दे वांट टू से। ठीक है, ये एक पॉइंट था, थोड़ा टेक्निकल था, बट अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द मेजर हेड्स नॉट परमिसिबल। मींस क्या, अमाउंट अवेलेबल अंडर वन मेजर हेड दैट इज SGST UTGST CGST IGST सेस cannot be utilized for discharging liability under any other major head. That is, amount of SGST or UTGST cannot be utilized for discharging liability of CGST or IGST or cess and vice versa. Example लिखा है, a taxpayer made a cash deposit of 5,000 to IGST through net banking.
The taxpayer can utilize this cash deposit of 5,000 in cash ledger to make payment only for IGST by debiting the cash ledger. Means आप समझ लो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप डिपॉजिट करते हो ना कैश लेजर में, तो कैश लेजर में एक साथ है ना ये 5 अकाउंट खुल जाते हैं आपका कैश लेजर, बट आपको लिखना पड़ेगा कि आप जो कैश जमा कर रहे हो वो सीजीएसटी के लिए जमा कर रहे हो, एसजीएसटी के लिए, आईजीएसटी के लिए, टीजीएसटी जिसके लिए जमा कर रहे हो उसी टाइटल के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। मीन सपोज आपके पास एक पर्ची है टैक्स भरने की, ऐसा समझ लो आप बैंक में रुपया जमा करते हो तो अमाउंट नहीं आता, तो वो अमाउंट में ना उन्होंने वो 5 टाइटल बना देंगे कि भाई ये अमाउंट सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आईजीएसटी का, यूटीजीएसटी का, सेस का, और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा अमाउंट कहाँ लिखना है, और जहां आप लिखोगे बस वो वहां उसी पर्पस के लिए यूज हो पाएगा कैश लेजर भी। तो दैट इज व्हाट वी लर्न। चलो आगे बढ़े। नंबर 4, 49.4, utilization of amount in electronic credit ledger for payment of output tax under CGST, IGST. The amount available in electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under this act or under IGST act in such manner and subject to such condition. Means आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पड़ा है। क्रेडिट लेजर क्या होता है सर? मीन्स आपने सपोज परचेज किया, बराबर है, तो परचेज पे आपने जो टैक्स भरा है, सपोज आपने एक राजस्थान से परचेज किया, आप गुजरात के हो, आईजीएसटी लग के आए तो आईजीएसटी का आपको क्रेडिट मिलेगा। सपोज आपने गुजरात में से लोकल से परचेज किया है तो वहां सीजीएसटी, एसजीएसटी लग के आया है तो उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। तो वो जो क्रेडिट है आईटीसी पड़ी है, मीन्स अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू योर क्रेडिट लेजर, दैट इज आईटीसी का जो आपके पास बैलेंस पड़ा है वो, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे टैक्स, आउटपुट टैक्स के लिए उसका यूज आप कर सकते हो। देखो कहाँ लिखा है, देखो लिखा है कि भाई द अमाउंट अवेलेबल, मैं 4th नंबर पढ़ रहा हूँ, द अमाउंट अवेलेबल इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बी केयरफुल, हियर टॉक अबाउट द क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर may be used for making any payment, but किसके, towards output tax, ये जो आपके पास क्रेडिट पड़ी है ना उसका यूज आउटपुट का टैक्स एलिमेंट भरने के लिए हो सकता है। अब है ना टैक्स इज वन ऑफ द माइनर हेड, और कौन कौन से माइनर हेड है तो आपको मालूम है ना, माइनर हेड में टैक्स आता है, फिर इंटरेस्ट आता है, फिर फीस आता है, फिर पेनल्टी आता है, एंड एनी अदर। तो आपके पास जो आईटीसी पड़ी है उसका यूज आप आउटपुट टैक्स के लिए कर सकते हो, है ना। फिर से देख लो, टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी एंड एनी अदर, ये 5 माइनर हेड है। तो आपके पास जो आईटीसी पड़ा है परचेज पे, टैक्स पे किया है उसका आईटीसी, दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर दिस आउटपुट टैक्स, टैक्स के लिए यूज हो सकता है, ये 4 पर्पस के लिए नहीं, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। चलो फिर आगे देखो, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये आपके पास जो 49.5 जो है उसका मैं एक है ना छोटा सा मेरा चार्ट बना के आपको देता हूँ। ये ए बी सी डी जो लिखा है ना, ए बी सी डी ई एफ, ये सब पॉइंट मेरे एक छोटे से चार्ट से कवर हो जाएंगे। तो ये 5वां पॉइंट अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, आपको 6ठा पॉइंट समझा रहा हूँ। रिफंड ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मीन सपोज इलेक्ट्रॉनिक लेजर मीन्स कौन सा लेजर, कैश लेजर। सपोज कैश लेजर में आपका कोई टैक्स पड़ा हुआ है अभी जो अनयूटिलाइज्ड है, तो आप उसका रिफंड ले सकते हो। तो यस, द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक इवन क्रेडिट लेजर में भी कुछ पड़ा है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, जो महीने का क्रेडिट अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़ा है, जो महीने का क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसमें भी अभी रुपया पड़ा है, इवन आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी और फीस और एनी अदर अमाउंट, इट में बी रिफंडेड। तो जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में रुपया पड़ा होगा वो आप सेक्शन 54 का यूज करो और रिफंड क्लेम करो तो आपको रिफंड मिल जाएगा। फिर 49.7 क्या बता रहा है, लायबिलिटी लेजर। लायबिलिटी लेजर कब बनता है, लायबिलिटी रजिस्टर कब बनता है, जब आप अपना सेल्स दिखाते हो जीएसटीआर 1 से। तो देखो, ऑल लायबिलिटीज ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट shall be recorded and maintained
in electronic liability registered under such manner as may be prescribed. जहां जहां prescribe लिखा है ना, ऐसा समझ लो कि उसके रिलेटेड रूल्स लिखे हैं, ठीक है। तो वो रूल्स कहाँ है सर? तो अप्रोप्रिएट प्लेस पे यहाँ ये रेफरेंस बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से ये बताया हुआ है ना। हम अप्रोप्रिएट जगह पढ़ लेंगे। फिर 49.8 क्या बता रहा है? 49.8 बता रहा है ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज। आपके पास सपोज रुपया पड़ा है, तो उससे आप कौन सी चीज सबसे पहले पे करोगे? अब सर कौन सी चीज, तो टैक्स ही होगा ना। हाँ, बट सपोज आपके पास प्रीवियस पीरियड का अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है, दूसरा आपके पास करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है, तो आप सबसे पहले कहाँ यूज करोगे इसका? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो क्रेडिट पड़ा है या फिर जो भी आपके पास रुपए पड़े हैं क्रेडिट लेजर में या फिर आपका कैश लेजर में, तो सबसे पहले वो ड्यूज प्रीवियस टैक्स पीरियड का जो भी बाकी है वो पे करने के लिए यूज करो, फिर करंट टैक्स पीरियड का पे करने के लिए करो, एंड अभी भी कुछ बचा है तो आपको 74 और 75 नंबर के सेक्शन में, सॉरी 73 एंड 74 नंबर के सेक्शन में आप पे डिमांड नोटिस वो लोग डाल सकते हैं, और डिमांड नोटिस में वो आपसे टैक्स मांग सकते हैं, तो वो पे करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। बट जो अमाउंट पड़ी है, सबसे पहले आप पुराना टैक्स भर दो, फिर करंट पीरियड का टैक्स भरो, और टैक्स के बाद ये 73 74 में मेनली पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह का प्रोविजन है। फिर 9th नंबर का पॉइंट 49.9 इंसिडेंस ऑफ टैक्स deemed to have been passed। क्या बताया है कि every person who has paid the tax on the goods or service or both under this act, unless contrary is proved by him, deemed to have been passed on the full incidence of such tax to the recipient of such goods or service or both। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ऐसा है कि आपने जिसको सेल किया, तो आप ऐसा मान लो कि उस पर फुल टैक्स उस पर ट्रांसफर कर दिया। मैं सपोज 1 लाख का मैंने सेल किया, उस पर 18% के हिसाब से 18,000 टैक्स आता है, तो मैंने पूरा 18,000 का जवाबदारी सामने वाले पे डाल दिया। अब उससे मैं रुपया लूंगा 18,000 और गवर्नमेंट को जमा करूंगा, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू बी ट्रांसफर्ड। ओके, तो यहाँ आपका 49 हो गया, और उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है डेट ऑफ क्रेडिट इन गवर्नमेंट अकाउंट। तो आपको सपोज गवर्नमेंट के अकाउंट में आपने रुपए जब कब जमा किए, ऐसा कब माना जाएगा? तो डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द is the date of deposit, the date of credit into the account, date of credit into the account of the government। यहाँ है ना एक वर्ड इज लिखना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। डेट ऑफ डिपॉजिट इज द डेट ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट इन द बैंक, ठीक है। फिर द एक्सप्रेशन टैक्स ड्यूज, उसका मीनिंग क्या होता है कि मीन्स टैक्स पेएबल, बट क्या नहीं आता है? तो नॉट इंक्लूड। इसमें क्या नहीं आता है? इंटरेस्ट, फीस एंड पेनल्टी नहीं आती, क्योंकि वर्ड क्या है इधर? टैक्स है, तो सिर्फ टैक्स आएगा, इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह नहीं आएगा, फीस नहीं आएगा। फिर अदर ड्यूज, अदर ड्यूज में ये सब आ जाता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ठीक है ना, ये सब अदर ड्यूज में आते हैं। तो टैक्स ड्यूज में सिर्फ टैक्स की अमाउंट एंड टैक्स के अलावा कुछ भी पे करना बाकी है, वो इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस, वो अदर ड्यूज में आएगा। ऑथोराइज बैंक किसको बोलेंगे? तो जिसका ब्रांच गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, किसके लिए? फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स, टीसीएस के लिए। तो यहाँ ये आपका मेन क्वेश्चन था सेक्शन 49, है ना। अब मैं आपको आपके मॉड्यूल में से दिखाना चाहता हूँ, जस्ट चेक इट आउट योर मॉड्यूल। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? मैंने पूरा सेक्शन 49 आपको अभी नटशेल में समझाया है, और फिर यहाँ आपके मॉड्यूल के अंदर हम सब ये चीज देखना चाहते हैं। तो देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, यहाँ से उन्होंने चालू किया है। हमारा जहां से बाकी है वहां से मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से बाकी है हमारा। तो लेट अस रीड फ्रॉम हियर। द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एक्सेट्रा payable by a person is required to be paid either by utilizing the amount available electronic cash ledger or electronic credit ledger। The amount utilized for payment of for balance electronic credit or cash ledger will show in GST BMT 1। अब है ना, ये क्या बोलते हैं, ये जो टैक्स है ना,
इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, ये जो पेएबल है वो कैसे पे होगा? तो दो तरीकों से पे होगा, पहला रास्ता एंड दूसरा रास्ता। पहला रास्ता क्या है कि बाय यूटिलाइजिंग आईटीसी, आपके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है उसका यूज करके आप ये पेमेंट कर दो। एंड दूसरा क्या है, आप अपना कैश लेजर यूज करें, इसको कैश लेजर को। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं। ओके, आगे देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पूरा सेक्शन 49 अब बताया है। अब चलो ये 49 का आप टाइटल क्या लिखोगे? तो आप है ना सब लोग यहाँ से चलो ये टाइटल लिखो अपने बुक में, ये टाइटल लिख दो, अमाउंट डिपॉजिटेड टू बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये जो 49(1) का टाइटल लिखा है ना, अमाउंट डिपॉजिटेड टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दिस इज द टाइटल ऑफ 49(1). आप लिखो, हमारे बुक में वो नहीं लिखा है ना, 49(1) का टाइटल नहीं लिखा है, तो ये जगह पे आप है ना ये लिख दो, मैंने अभी जो बोला ना आपको, फिर से बोलता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ, अमाउंट डिपॉजिटेड टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दिस इज द टाइटल। आए समझ में सभी को? ओके, मैं अब 49(1) नहीं पढ़ता हूँ, हमने सफिशिएंटली पढ़ लिया है ना। फिर चलो दूसरा 49(2), उसका टाइटल क्या आएगा? यहाँ टाइटल क्या लिखोगे 49(2) का? तो देखो ये 49(2) का टाइटल है इधर, आईटीसी टू बी क्रेडिटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये टाइटल रहेगा, आईटीसी टू बी क्रेडिटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, चलो तीसरा क्या है? अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स की बात हुई है, तो तीनों लेजर्स के बारे में डिस्कशन है। फिर 49(3) नहीं दिया है, 49(4) नहीं दिया है, डायरेक्टली 49(5) के बारे में कुछ कहा है। सो ये सब चीजें हमारे मॉड्यूल की गड़बड़ी है, बट कोई टेंशन नहीं, हम पढ़ते हैं। ओके, अब देखो 49(3) होना चाहिए बट नहीं दिया है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, जीएसटी में कौन कौन से लेजर्स है? जीएसटी में विच आर द इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स? इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, उसके अंदर ये 3 लेजर्स हैं। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वो कब यूज होगा, सॉरी कब जमा होगा, कैसे जमा होगा, एंड उसकी अमाउंट का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है? द सेम वे क्रेडिट लेजर, इन द सेम वे लायबिलिटी लेजर। अब चलो कैश लेजर में आप जमा करते हो अमाउंट, तो वो जब जमा करो ना तो आपको बताना पड़ेगा उसके लिए टैक्स के लिए कितना अमाउंट जमा किया, इंटरेस्ट के लिए कितना जमा किया, पेनल्टी के लिए कितना जमा किया, एंड फी और अदर पेमेंट के लिए कितना। ठीक है, तो ये सब जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया उसका डिटेल है, ये कौन बताएगा? तो इट वुड बी डन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, देखो बाय पर्सन, बाय इंटरनेट बैंकिंग। अब यहाँ ये रुपए कैसे जमा होंगे? तो इंटरनेट बैंकिंग से हो सकता है, फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से हो सकता है, फिर एनईएफटी हो सकता है, फिर आरटीजीएस हो सकता है, अदर पेमेंट हो सकते हैं। तो ये जो पांचों मोड है ना, जो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, कि रुपए बैंक में जमा करना है तो ये स्टाइल से जा सकता है। ओके, और बाय सच अदर मोड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन। और उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा? कैश लेजर का यूटिलाइजेशन क्या होता है भाई? कोई भी टैक्स आपको भरना है ना, उसके लिए तो सबसे पहले टैक्स के लिए यूज होगा, फिर इंटरेस्ट के लिए यूज होगा, फिर पेनल्टी के लिए यूज होगा, और फिर फीस भरने के लिए। तो ये सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले आप टैक्स के लिए, फिर इंटरेस्ट, फिर पेनल्टी, फिर लेवीज, जो कैश लेजर में पड़ा है उसका यूज। हाँ,
कैश लेजर मीन्स आपका कैश बैलेंस। ओके, डन एवरीवन, क्लियर है? ये कुछ हो रहा है, चलो ओके ओके। फिर नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये क्रेडिट लेजर में क्या आता है, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा होता है इसके अंदर। क्रेडिट लेजर में क्या जमा होता है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न मीन्स आपने जो भी रिटर्न भरा उसके अंदर जो बताया उतनी क्रेडिट आपको मिलेगी, तो दैट यू कैन यूटिलाइज। अब ये क्रेडिट लेजर का यूज क्या करोगे, तो सेक्शन 49(4) में कहा है उसके पर्पस के लिए, और 49(3) में इधर है आई थिंक, यस। तो यहाँ आपको है ना 49(2) के बाद 49(3) और 4 नहीं मिला था, देखो 49(1) देखा था आपने, 49(2) देखा था आपने, बट 3, 4 नहीं मिल रहे थे, तो 3, 4 इधर इनडायरेक्टली कवर किए, 49(3) इधर, एंड उसके बाद 49(4) इधर, है ना, ये रहा। हाँ ओके, तो भाई क्रेडिट का यूज क्या करोगे, आईटीसी जो आपके पास पड़ी है, तो सबसे पहले क्या यूज करोगे, तो भाई आउटपुट टैक्स भरने के लिए आईटीसी का यूज होगा, ठीक है। एंड आईजीएसटी अगर भरना है तो उसके लिए आप पे कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, अब मैनर कंडीशन तो रूल्स में लिखा है, उसको छोड़ो। लायबिलिटी लेजर, ये क्या होता है, तो ये ऑल लायबिलिटीज ऑफ टैक्सेबल पर्सन इन दिस एक्ट शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड, ठीक है। लायबिलिटी लेजर में क्या होता है कि पूरे महीने का आपका जो भी जीएसटी पेबल है वो उधर दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। और वो लायबिलिटी रीपे करने के लिए, है ना, सपोज मैं इधर लिख दूं अमाउंट, सपोज 10 लाख का लायबिलिटी है मेरा, तो ये 10 लाख पे करने के लिए आपने सबसे पहले 6 लाख का क्रेडिट यूज कर लिया, तो बाकी के अब बचे कितने, 4 लाख, तो 4 लाख के कैश में से पे होंगे, है ना। एक मिनट, थोड़ा गलती हो गया है, ओके बस, तो यहाँ आपका ये 3 चीज खत्म हो रहा है। अब है ना 49(5) बाकी था, तो 49(5) के लिए मैं बोर्ड पे कुछ काम कर रहा हूँ। इधर भी देखो मैंने नहीं पढ़ाया था 49(5), और आपको बताया था कि उसके लिए मैं एक बोर्ड पे चार्ट ड्रॉ करूंगा, उसमें ये सब पॉइंट आ जाएंगे, ए से लेकर के एफ तक। तो इसके लिए आप सब लोग मैं अभी बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, उस पर ध्यान दें। और ये ऑलरेडी मैंने हमारे क्लास में भी आपको लिखाया है, बट एक बार फिर से। अब है ना, एक है हमारा आईजीएसटी, दूसरा है हमारा सीजीएसटी, तीसरा है एसजीएसटी, और एसजीएसटी का और नाम है यूटीसी। आपको याद हो मैंने बोर्ड पे ये लिखा है पास्ट में, है ना, और उसमें मैंने रैंक लिखा है। बच्चे लोग बातें मत करो। अब मैं आपको रैंक बता रहा हूं, अगर ये आउटपुट पेबल है, आउटपुट टैक्स, ठीक है, और अब आपके पास आईटीसी पड़ी है इधर,
अब आप देखो, ITC to be used for, तो यहां मैं लिख देता हूं पहले आपको याद है कुछ ऐसा, IGST का सबसे पहले IGST के लिए, अगर कुछ बचे तो CGST के लिए, अगर कुछ बचे तो फिर SGST या UTGST के लिए। अगर CGST जो है, एक मिनट है, थोड़ा मैं उल्टा लिख, यहां लिख देता हूं रैंक ऑफ ITC टू बी यूटिलाइज्ड फॉर। अब ये पहला रैंक, दूसरा रैंक एंड तीसरा रैंक, तो है ना। सबसे पहले IGST का यूज, CGST का यूज पहले CGST के लिए, अगर कुछ बचा तो IGST के लिए, IGST का पहले IGST के लिए, अगर कुछ बचा तो फिर CGST, अगर फिर कुछ बचा तो SGST या फिर UTGST। यहां CGST का यूज कभी भी SGST के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। फिर SGST UTGST का सबसे पहले यूज SGST पे करने के लिए या फिर UTGST पे करने के लिए, अगर कुछ बचा तो IGST के लिए, बट उसका कभी भी CGST पे करने के लिए यूज नहीं होगा। तो ये जो है, ये चार्ट आपको मैंने पास्ट में कहीं क्लास में लिखाया है, इफ यू रिमेम्बर। बाकी अभी इसका मैं फोटो आपको भेज देता हूं। अब है ना, ये जो मैंने लिखा है उसको आप चेक करो। चलो, लेट बी हैव ए चेकिंग ऑफ ऑल, ये सबका चेकिंग करते हैं। तो चेकिंग के लिए आपको मैं इधर दिखाता हूं, ये प्रोविजन। अब उन्होंने क्या कहा, IGST का अगर क्रेडिट पड़ा है, इनपुट, इनपुट मीन्स ITC, इधर इनपुट मीन्स क्या, ITC। तो ये ITC, आपके पास ITC पड़ा है, ITC, IGST का ITC पड़ा है, तो सबसे पहले उसका पहला यूज IGST के लिए, फिर दूसरा यूज CGST के लिए, और तीसरा यूज SGST या UTGST के लिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, ओके। अब नॉट अवेलेबल मीन्स क्या है, इसका कहाँ यूज नहीं हो सकता, तो ये तो सभी का पक्का फ्रेंड है। IGST कैन बी यूटिलाइज फॉर पेइंग एनीथिंग, CGST, SGST, UTGST और IGST कुछ भी। फिर देखो, CGST का सबसे पहला रैंक CGST के लिए, अगर कुछ बचता है तो IGST के लिए, बट किसके लिए यूज नहीं होगा, तो SGST, UTGST के लिए यूज नहीं होगा। इन द सेम वे SGST का सबसे पहला यूज SGST के लिए, अगर कुछ बचा तो IGST के लिए, बट वो कभी भी CGST या फिर UTGST के लिए यूज नहीं होगा। इन द सेम वे UTGST का सबसे पहले यूज UTGST के लिए, फिर IGST के लिए, but this cannot be utilized for CGST और SGST। अब ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्या, रैंक। ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, रैंक, रैंक या फिर सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं। तो उसके पहले के लिए तो नोट है, तो चलो वो नोट देखते हैं। अब है ना, ये इसमें अमेंडमेंट है इसलिए नोट लिखा है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1419 सेक्शन 49A एंटर हुआ है नया वाला। अब है ना, ये मैंने नहीं पढ़ाया था जो इधर था, अगर आपको याद हो तो देखो,
ये 49A, ये वाला आपको नहीं पढ़ाया था मैंने। क्या है? Utilization of ITC subject to certain condition, notwithstanding anything contained in section 49, the ITC on account of central tax, state tax, union territory tax shall be utilized towards payment of integrated tax, central tax, state tax or union territory tax as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has been first utilized. Means only after the input tax credit available has been first utilized fully towards such payment. ठीक है, अब इसकी इम्पैक्ट क्या होगी? ये जो प्रोविजन बना है उसकी इम्पैक्ट क्या होगी? तो देखो लिखा है IGST credit can be adjusted equally between CGST, SGST only after or any other portion at the option of SSC. ठीक है, ये तो ठीक है, बट दूसरा क्या लिखा है? हाँ, provided that the input tax credit on account of state GST, state tax shall be utilized towards payment of integrated tax only where the balance of input tax credit on account of central tax. ठीक है, ये सब काम का नहीं है, 49 है इधर है। हाँ, ये रहा देखो, notwithstanding anything contained under 49, the input tax credit on account of central tax, state tax, union territory tax shall be adjusted towards payment of integrated tax, central tax, state tax or union territory tax only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been fully utilized. अब है ना, अगर आपको याद हो तो उसके लिए मैंने आपको कुछ क्लास के अंदर बताया था, अगर याद हो कि सपोज मैं मिस्टर ए, बी एंड सी तीन भाई है, ए का नाम है IGST, बी का नाम है CGST और सी का नाम है SGST या UTGST। अब है ना, ए बी सी तीनों साथ में जाते हैं, तो जो बड़ा है वो और कुछ भी खाना पीना खाने जाते हैं तो सबसे पहले खर्चा कौन करेगा? तो जो बड़ा भाई है वो पे करेगा सबसे पहले, जो बड़ा भाई है वो पे करेगा। तो अब उसकी पॉकेट में से मनी खत्म हो जाए ना, उसके बाद ही सेकंड ब्रदर पे करेगा, और उसके पॉकेट में से भी खत्म हो जाए ना, उसके बाद ही थर्ड ब्रदर की बारी आती है। ये सिस्टम है। तो यही पता है कि सबसे पहले ना आप IGST का यूज कर लो सब पे करने के लिए। मींस IGST का सबसे पहले IGST के लिए यूज कर लो। अभी भी कुछ IGST का क्रेडिट बचा है तो पहले CGST के लिए यूज कर लो। अभी भी बचा है तो कुछ SGST के लिए कर लो। अभी भी बचा है UTGST के लिए कर लो। ठीक है, और उसके बाद आप CGST की क्रेडिट यूज करो, SGST की क्रेडिट यूज करो, ये सब। तो ये पॉइंट है आपको जो इधर दिया है। लेट अस सी फर्दर। ये था सेक्शन 49, है ना? ये और वही चीज इधर नोट के थ्रू लिखी थी। ओके, अब एक बार IGST का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो जाए, ये नोट के बाद मैं बता रहा हूँ, एक बार IGST का फुल यूटिलाइजेशन हो जाए, फिर CGST का सबसे पहले CGST के लिए यूज, IGST का अभी भी कुछ पे करना बाकी है तो CGST कैन बी यूज फॉर SGST। तो ये सब चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी मेरे ये चार्ट के अंदर, है ना? इसके बाद का जो भी है ये चार्ट में लिखा है, बट यहाँ मैं एक चीज एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, है ना? सब लोग इधर देखो, सेक्शन 49A क्या बता रहा है? IGST should be utilized first. ये बड़ा भाई है, उसका पॉकेट सबसे पहले खाली करना है, तो दैट इज सेक्शन 49। ओके, आगे बढ़े। चलो, ये दो प्रोविजो है, वो दो प्रोविजो देखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे चार्ट में ये कवर हो गए हैं। अब देखो 49(5)E, ये भी हो गया है, ये 49(5)F वो भी हो, 49(5) मींस ये कंप्लीट। अब 49A क्या था वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है? और उसके साथ साथ देखे ना, रूल नंबर 88 है भी आया है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन के लिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/19, ये जो 16 नंबर का नोटिफिकेशन आया है 2019 में, उसमें उन्होंने रूल नंबर 88 है इंसर्ट किया है।
उसमें ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अबे ना मैं एक चीज बता देता हूँ सबसे पहले आपको, ये क्यों आना पड़ा रूल 88A को, है ना। बहुत बार ऐसा रहता था कि आईजीएसटी का बहुत ज्यादा क्रेडिट अनयूटिलाइज रहता था। अब या तो उसका रिफंड ले लो, ठीक है, या फिर वेट करो, आईटीसी को कैरिड फॉरवर्ड करते जाओ। तो किसी के पास आप सोचो कि बहुत ज्यादा आईटीसी पड़ी है आईजीएसटी की, बट सीजीएसटी एसजीएसटी भरने के लिए तो उसको कैश लेजर ही यूज करना पड़ेगा, तो ही कैन यूटिलाइज द कैश। सो दैट इज वाई उन्होंने क्या कहा कि पहले है ना बाहर वाले की मींस आईजीएसटी मींस बाहर वाला गुड्स, हमारे स्टेट से बाहर वाला गुड्स, तो उसकी क्रेडिट सबसे पहले यूज करो। सबसे पहले आईजीएसटी के लिए यूज करो, अभी बचा है तो सीजीएसटी के लिए यूज करो, अभी भी बचा है तो एसजीएसटी के लिए यूज करो, अभी बचा है तो यूटीजीएसटी के, पूरा खत्म करो उसको। और खत्म होने के बाद ही अब सीजीएसटी का जो आईटीसी पड़ा था वो सीजीएसटी के लिए यूज करना है ना, एसजीएसटी का एसजीएसटी के लिए। बट सपोज आईजीएसटी का सर उतना ज्यादा नहीं था तो कोई बात नहीं, पहले आईजीएसटी के लिए यूज करो और फिर नॉर्मल नियम लागू लगाओ, मींस फिर सीजीएसटी का यूज कर लो और सीजीएसटी का जो बचे उसमें से आईजीएसटी पे कर लेना। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे समझ में आएगा, है ना। लेट अस सी। तो उसके रिलेटेड रूल नंबर 88A आया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड। मींस इंटीग्रेटेड टैक्स का क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स फर्स्ट भी यूटिलाइज, उसका फर्स्ट यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, सबसे पहले ये। एंड अमाउंट रिमेनिंग, अगर कुछ बचा तो टुवर्ड्स कहाँ, पहले सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स, अगर और भी बचा तो स्टेट टैक्स, अगर और भी बचा तो यूनियन टेरिटरी टैक्स, इन एनी ऑर्डर, है ना, इन एनी, अरे सॉरी एक मिनट, इन एनी ऑर्डर। अबे ना ये जो था इन एनी ऑर्डर मींस क्या, पहले है ना ये सीक्वेंस था, सुनिएगा एक चीज भूल गया, ये रूल 88 आने की वजह से ना ये जो चार्ट है ना, इसके अंदर ये जो रैंक थी ना, जिसका फर्स्ट रैंक एंड ये जो सेकंड रैंक था ना, ये थर्ड रैंक का कंसेप्ट ही निकल चुका है। अब क्या हुआ मालूम है, ये सब एक साथ आ गए, हम साथ साथ। Means IGST का excess credit can be utilized for CGST, SGST, UTGST in any sequence, कोई भी, है ना, ये 88 है में के अंदर उन्होंने बताया। सर ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि उसमें भी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, सबसे पहले सीजीएसटी यूज करो, पे करो, और उसके बाद बचे तभी एसजीएसटी, तभी यूटीजीएसटी। अब उन्होंने छोड़ दिया कि आप डिसाइड करो को सबसे पहले क्या पे करना है। तो दैट वाज योर 88B। अब इसमें एक और प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स shall be utilized towards payment of integrated tax, central tax, state tax and union territory tax as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has been first utilized only। अबे ना इसकी डिटेल में मैं जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको कोई एग्जांपल कराऊं जिससे आपको ये चीज ज्यादा समझ में आए। ओके तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां से हमको सब समझ में आएगा। देखो, X Limited being a registered person supplying the taxable goods in the following manner। X Limited कौन है, रजिस्टर्ड आदमी है, एंड वो क्या कर रहा है, टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहा है इन फॉलोइंग ऑर्डर। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मींस क्या, विद इन स्टेट, विद इन स्टेट क्या लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी, है ना। तो ये वाले केस में सी लगेगा, एनएस लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। फिर इंटर स्टेट सप्लाई, उसके अंदर क्या लगेगा, आई लगेगा, आईजीएसटी। फिर इंट्रा स्टेट परचेज, इधर आपको आईटीसी मिलेगा, इंटर स्टेट परचेज। अब यहाँ क्रेडिट, ये दोनों में आईटीसी मिलेगी, आईटीसी है। और यहाँ क्या है, ये दो में आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। ओके, अब आईटीसी में भी इधर आईटीसी का कौन सी मिलेगी, इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट से परचेज किया है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का आईटीसी मिलेगा, और ये इंटर स्टेट परचेज में है आईजीएसटी का आईटीसी मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आईटीसी एट द बिगिनिंग,
आईटीसी एट द बिगिनिंग मीन्स क्या, ये ओपनिंग आईटीसी थी, मीन्स आपके पास इतना ओपनिंग बैलेंस पड़ा था। अब क्वेश्चन है, रेट सीजीएसटी एसजीएसटी आर 99% and IGST 18%. Inward and outward supplies are exclusive of taxes. Means ये जो figures आपको दी है वो exclusive of taxes है. And all the conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled. Compute the net GST payable. अब चलो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं आउटपुट टैक्स पेबल। पहले तो ये 18,000 है, सॉरी 18 लाख है, इससे शुरुआत करता हूँ। ये 18 लाख पर आप है ना 99% करो। चलो 18 लाख का 9% कितना आता है? 18 लाख का 9% 1,62,000। फिर से 9% 1,62,000। ओके, आपका ये हो गया। फिर ये 13 लाख पे आपका आउटपुट जीएसटी पेबल कितना है? तो 13 लाख पे आपको क्या पे करना होता है? आईजीएसटी, क्योंकि ये इंटर स्टेट है, दो स्टेट के बीच में, और ये क्या था? इंट्रा स्टेट। सिमिलरली यहाँ इंट्रा स्टेट था और ये इंटर स्टेट है। ओके, तो चलो शुरू किया मैंने। अभी मैं इंटर स्टेट पे अटका हूं, तो इंटर स्टेट की बात करें। अब इंटर स्टेट का सेल सप्लाई है कितना? 13 लाख का। 13 लाख का 18% करो। 13 लाख का 18% कितना आता है? 2,34,000। तो दिस इज योर जीएसटी पेबल। ठीक है, पेबल का काम खत्म हो गया। अब आपका आईटीसी कितना है? तो उसके लिए ये चार्ट देखो। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है आईटीसी का, ये रहा। ये जो था वो ओपनिंग आईटीसी है ना, ओपनिंग। अब ओपनिंग कितना है? 130, 130 एंड 170। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ये 130 लिख दिया, ये 130 लिख दिया एंड 170 लिख दिया। ये वर्किंग है ना। स्टेटमेंट शोइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट लेजर में कितना है? तो ये ओपनिंग बैलेंस है, प्लस आईटीसी ड्यूरिंग द पीरियड। अब परचेज कितना किया है? देखो परचेज यहाँ आपने ये 13 लाख का परचेज किया है, तो 13 लाख पे 9% लगाओ। चलो 13 लाख पे अगर आप 9% लगाओगे तो 1,70,000 एंड 1,17,000 आएगा। ठीक है, ओके। एंड फिर इंटरस्टेट परचेज किया आपने 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख पे 18%, 1.5 लाख का 18% कितना होता है? 27,000। तो इतना आपको आईटीसी मिलेगा। तो ओपनिंग आईटीसी था, दूसरा इतना मिला। अब टोटल जो हुआ ओपनिंग प्लस करंट पीरियड, अब ये जो टोटल आ रहा है ना, तो दैट इज द टोटल आईटीसी अवेलेबल एंड दिस इज योर वर्किंग नंबर 1। दिस इज योर वर्किंग नंबर 1। 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। अब देखिएगा, अब देखो ये जो क्रेडिट आईटीसी थी, जो आईटीसी अलाउड है, यहां मैं लिख देता हूं वर्किंग नंबर 1। यहां मैं क्या लिख देता हूं? वर्किंग नंबर 1। कितना आईटीसी मिला? तो ये वर्किंग नंबर 1 में हमने जो ढूंढा उतना आईटीसी मिला। ठीक है, और वो वर्किंग नंबर 1 का टाइटल कहाँ दिया है? ये रहा, दिस इज योर वर्किंग नंबर 1, जो हमने सबसे पहले ढूंढ लिया कि भाई टोटल कितना क्रेडिट है। तो ओपनिंग प्लस करंट पीरियड में जो मिला वो। तो अब आप माइनस कीजिए, ये माइनस किया, ये माइनस किया और ये माइनस किया। तो अब है ना, देखो सीजीएसटी में ये जो है नेगेटिव फिगर है ना, तो इसका मीनिंग होता है एक्सेस क्रेडिट, है ना। आईटी जीएसटी पेबल सीजीएसटी का और एसजीएसटी का देखो 1,62,000 है, उसके मुकाबले उसका क्रेडिट ज्यादा है 247। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सेस आईटीसी, है ना, एक्सेस आईटीसी। मेरे को लिखने में थोड़ा देर हो रहा है, बट मैं लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा इसलिए। एक्सेस आईटीसी, अब एक्सेस आईटीसी कितना है? 85। अब आप देखो आईजीएसटी 2,34,000 पे करने हैं, 1,97,000 का क्रेडिट पड़ा था, पे कर दिया। अब ये 37,000 पे करना बाकी है। कौन सा? आईजीएसटी पे करना बाकी है।
तो आईजीएसटी में रैंक क्या है? तो आईजीएसटी का एक्सेस क्रेडिट पड़ा हो तो वो रैंक की बात आती है कि भाई सबसे पहले वो आईजीएसटी का यूज कर लो, फिर उसके बाद वो सीजीएसटी के लिए भी यूज हो सकता है एसजीएसटी। बट यहाँ तो आईजीएसटी पे करना बाकी है 37। अब है ना, देखो सीजीएसटी ये दूसरे नंबर का भाई है, ये सबसे पहले नंबर का भाई है। सबसे पहले उसके पॉकेट में खाली हुआ 197 खाली हो गया। ये जो आईटीसी है ना, वो आपका एक टाइप का पॉकेट है, तो पॉकेट में 197 इधर खाली हो गए। अब कौन से भाई की बारी आएगी? सेकंड भाई की बारी आएगी। ये रहा, ये थर्ड भाई। अब है ना, तीनों ने अपना अपना तो भर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ने अपनी अपनी जवाबदारी भर दी, बट इसके पास 85,000 बचे हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अभी सीजीएसटी वाले की बात कर रहा हूँ। ये सेकंड नंबर का भाई है। तो अब क्या करेगा? ये 85,000 का वो अपने बड़े भाई दैट इज आईजीएसटी को पे करने के लिए यूज कर लेगा। तो यहाँ से 37,000 यहाँ शिफ्ट हुए, ठीक है। और यहाँ जवाबदारी बनी नील, यहाँ भी नेट जीएसटी पेबल नील बना सभी में, अब किसी का कुछ बाकी नहीं। बट यहाँ 85 नेगेटिव और पॉजिटिव 37 मीन्स ये दोनों का नेटिंग करोगे आप तो आपको इतना अमाउंट आएगा, इतनी एक्सेस क्रेडिट। और यहाँ तो सीधी सीधी 85,000 एक्सेस क्रेडिट के तौर पे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, और इधर आपको कोई जीएसटी पेबल नहीं है, तो यहाँ नील ही आएगा। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेस आईटीसी कैरिड फॉरवर्ड। ओके, एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? अब आप अनम्यूट होके मेरे को जवाब दे कि मैंने अभी जो समझाया वो कंसेप्ट आपको समझ में आया सेक्शन 49 का? कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लो। समझ आ गया। ओके, चलो अब आगे बढ़े। ये हमारा पहला सम था। बाय द वे मैं बता देता हूँ आपको, ये एग्जाम, ये जो चैप्टर है वो कितने पेज का है। तो ये देखो, अभी 390 है, फिर 391 है, 392, 393, 394, 395, 396, 397 एंड उसके बाद यहाँ रिफंड है, रिफंड। ओके, तो 398 यहाँ तक है, 398 तक है। और अभी हमारा कितना हुआ है? 390। तो अभी 8 पेज और बाकी है। तो चलो, इलस्ट्रेशन अच्छे है इधर, तो लेट अस अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशन। एग्जांपल नंबर 2 देखो, ए हैज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ 1 लाख। चलो, ए का 1 लाख का लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी टुवर्ड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, एंड 20,000 टुवर्ड्स आईजीएसटी, ठीक है। तो आईजीएसटी पे करने के लिए 20,000 बाकी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के लिए 1 लाख बाकी है, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट, उसका 1,800 रुपया इंटरेस्ट पे करना भी बाकी है। ओके, अब क्या होगा? एक्सप्लेन द मैनर ऑफ डिस्चार्ज द लायबिलिटी। सबसे पहले पे क्या करोगे? इन द फॉलोइंग 2 इंडिपेंडेंट केसेस, अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, किसका? सीजीएसटी, एसजीएसटी का 25,000 एंड आईजीएसटी का 25,000, तो क्या करेंगे? चलो, सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो 25,000 मेरे पास क्रेडिट पड़ा है दोनों का, तो सबसे पहले खुद की जवाबदारी पे करने के लिए मीन्स देखो, आउटपुट टैक्स पेबल कितना है? तो सीजीएसटी 50,000, एस 50,000, सर 1 लाख था ना, पर दोनों का 50-50 होता है ना ये, एंड आईजीएसटी का 20,000 ये पे करना बाकी था। इवन इंटरेस्ट को भी मैं पेबल में लिख देता हूँ, ये पेबल। अब आपके पास आईटीसी कितनी पड़ी है? तो पहला आंसर, आईटीसी पड़ा है आपका ये नंबर, पहला नंबर 1 राउंड करता हूँ, तो 25,000 ईच, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी का भी 25,000, तो हर एक में 25-25 पड़े थे। चलो, ये भी लिख दिया, ये 25, ये 25, ये 25। अब आप देखो, 50 पे करने थे, 25 पड़े, तो उसका 25,000 जीएसटी पेबल, 50 भरने थे, 25 पड़े हैं आईटीसी में, तो यहाँ बाकी का 25,000 पे करना। बट यहाँ 20,000 आईजीएसटी पड़ा है, तो 20,000 आईजीएसटी पे करना है, बट पड़ा क्रेडिट कितना है? 25,000। तो नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कुछ बचती है इधर? नहीं, यहाँ तो एक्सेस क्रेडिट बचती है। यहाँ एक एक्चुअली लिखना पड़ेगा एक्सेस क्रेडिट, एंड वो एक्सेस क्रेडिट जो नेगेटिव 5,000 था इधर, है ना, इसको हमें ना एक्सेस क्रेडिट, मैं अगर प्रेजेंटेशन लिखा हूं तो यहाँ एक
नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के नीचे एक्सेस क्रेडिट है, ऐसा लिखो। एंड ये एक्सेस क्रेडिट आईजीएसटी का आपने सबसे पहले कहाँ यूज कर लिया? सीजीएसटी पे करने के लिए। अब सीजीएसटी के 25 तो पे करने थे, तो उसमें से ये 5000 पे कर लिए। अब इसका 20,000 बाकी रहा, एंड इधर 25,000 बाकी रहा। थोड़ा इधर कितना बाकी रहा? 20,000, और इधर कितना बाकी रहा? 25,000 बस। एंड और मजे की बात, ये 1800 इंटरेस्ट ये भी पे करना बाकी है। मीन्स अब क्या करना पड़ेगा आपको? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इतने रुपए टोटल जमा कराने पड़ेंगे, 46,800। एंड इतने रुपए जब जमा कराओगे तो उसमें आप बाइफर्केशन लिखोगे। ये 46,800 में से 20,000 रुपए सीजीएसटी के लिए, ये 46,800 में से मैंने 25,000 किसके लिए यूज किए? तो भाई एसजीएसटी के लिए। ओके, एंड बाकी के 1800 जो कैश में पे करने हैं वो इधर इंटरेस्ट के। ओके, हो गया बस। तो ये समझाना था आपका। ये केस 1 था, केस 1। दिस वाज द फर्स्ट आंसर, केस 1। अब हम दूसरा देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल। सपोज ये केस 2 देखते हैं, आईटीसी ही नहीं पढ़ा था तो बहुत सरल हो गया। ये जो आपका आउटपुट टैक्स पेबल है ना, आउटपुट टैक्स पेबल, ये 50, 50 और 20 उतना ही हमको पे करना है, ऐसा मान लो। यहाँ इंटरेस्ट भी पेबल, तो 1,21,800 पेबल है। तो ये कैश लेजर में जमा करा दो इतने रुपए। कितने जमा करा दो भाई? तो जितना आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 1,21,800, एंड फिर उसमें से ये अमाउंट को ये नाम से बाइफर्केट करो कि भाई ये भरा है 1,21,800 और उसमें से 50,000 सीजीएसटी के लिए भरा है। फिर एक मिनट, ओके, दूसरा 50,000 किसके लिए भरा है? एसजीएसटी के लिए भरा है। फिर ये बाकी का 20,000 इसके लिए और 1,800 इसके लिए। ऐसा करके आपका 1,21,800 खत्म होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल था। चलो अब है ना तीसरा एग्जाम्पल देखो, थर्ड वाला। वाई लिमिटेड ऑपरेटिंग 2 स्टेट्स, है ना, ये 2 स्टेट्स के अंदर ऑपरेट करते हैं। पहला स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। एंड दूसरा स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। द टैक्स लायबिलिटी आर गिवन। चलो अब है ना डायरेक्टली उन्होंने टैक्स लायबिलिटी बता दी है, जरा समझना, ये वैल्यू नहीं है, टैक्स है। तो चलो 25,000 आंध्र में, 10,000 तमिलनाडु में। फिर ये सीजीएसटी के नाम पे, आउटपुट सीजीएसटी। फिर आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। ओके, और ये अमाउंट है 2 अलग अलग स्टेट में। अब करना क्या होगा? दोनों स्टेट का अलग अलग ही करना होगा। आंध्र का आंध्र में होगा, वहां अलग रिटर्न भरा जाएगा, तमिलनाडु का तमिलनाडु में, तो कंबाइन मत करना। अब ये देखो, ये 3 आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेबल है, एंड ये 3 जो है आपका आईटीसी है। तो चलो देखो, उन्होंने ना स्टेट वाइज लिख दिया। चलो अब देखो, ये सबका आईटीसी ये रहा, ये 25,000, ये 10,000, ये 3,000, और इधर 10, 5 एंड 250। ओके, 10,000, 5,000 एंड 250। ओके, अब उसमें से आईटीसी कितनी मिलेगी? तो ये रही आईटीसी भाई, 8,000, 15,000, 12,000।
अब है ना 1 मिनट, इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST का आंध्र प्रदेश में 8, 15 एंड 12 है, तो उसका उन्होंने कैसे यूज किया है देखो जरा। अब देखो ये तो, हाँ सबसे पहले बड़े भाई को खाली करेंगे, है ना। तो अब बड़े भाई का क्रेडिट कितना है देखो, ये 3,000 बड़े भाई का जवाबदारी है और 12,000 बड़े भाई के पास पड़े हैं। तो 12,000 में से सबसे पहले ये 3,000 यूज किए जाएंगे, ठीक है। ये इसका रैंक होगा फर्स्ट। और अब जो बाकी के बचे वो कहाँ, वो सबसे पहले खत्म कर दो, तो ये यहाँ खत्म किए CGST में। ओके डन। तो दैट इज द ITC ऑफ IGST। सबसे पहले IGST का ITC यूटिलाइज कर लिया। तो देखो CGST का खुद का भी क्रेडिट पड़ा था 8,000 का, बट ये 8,000 अभी यूज नहीं किए। सबसे पहले IGST में से जो बचा बड़ा भाई का जो भी पैसा है वो खत्म कर दो। तो 3,000 पे करने के बाद ये दूसरे 9,000 भी पे कर दो, अब खत्म। अब सोचो अब जवाबदारी कितनी है, तो अब है 16,000 एंड 10,000, इतने की जवाबदारी है। देखो मैं लिखूं इधर 16,000 10,000। अब आप अपनी खुद की क्रेडिट यूज कर ले। अब ये 8,000 को इधर यूज करो। अब ये 15,000 का भी आप यूज करो इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 8,000 पे करना बाकी है, तो कैश लेजर से पे करो। और ये 10 पे करना था, 15 पे कर दिया, तो ये 5,000 का आपका क्या बचेगा, एक्सेस क्रेडिट, है ना। 10 था और ITC 15 की थी, तो 5,000 आपका क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड। टू बी कैरिड फॉरवर्ड मीन्स नेक्स्ट महीने के लिए ले जाना है। चलो सिमिलरली आप तमिलनाडु का देख लेना, इट वॉज अ सिंपल एग्जाम्पल। ओके फिर 49, 6, 7 एंड 8 ये 3 प्रोविजन इधर लिखी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है। 49, 6 का टाइटल क्या पढ़ा था इधर देखो तो, 49, 6 का टाइटल क्या पढ़ा था इधर देखो, रिफंड ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर। अगर कैश लेजर में अगर आपके पास बैलेंस पड़ा है या फिर क्रेडिट लेजर में आपके पास बैलेंस पड़ा है, तो आप उसका रिफंड मांग सकते हो सेक्शन 54 में। तो ये 6 नंबर का टाइटल आप उधर लिख दो, रिफंड ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लेजर। ओके फिर यहाँ 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट 49.7, तो वहां भी ये आप टाइटल लिख दो। कौन सा टाइटल लिखो, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। फिर 49.8 आ रहा है, 49.8 का भी टाइटल लिख दो, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। मींस पिछले साल का हम पहले पे करेंगे, फिर करंट ईयर का, एंड उसके बाद डिमांड नोटिस का जो भी टैक्स बाकी है वो पे करेंगे। ओके द फॉलोइंग ऑर्डर्स। हाँ बोलिए। ये सम काढो तो पाછું પર हाँ बोलो। એમાં SGST માં એક્સેસ 5,000 પડ્યા છે ને જો ITC। देखो सबसे पहले IGST की बात कर ले, तो IGST भरना 2,500 था और IGST का मेरे पास क्रेडिट कितना था, 16,000, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हाँ आंध्र की बात कर, तमिलनाडु की बात कर रहे हो या आंध्र की बात कर रहे हो? आंध्र प्रदेश में SGST માં 5,000 जो एक्सेस પડ્યા છે ને हाँ એ આમાં યુટિલાઇઝ ના કરી શકે CGST માં। भाई CGST और SGST का कभी भी इंटरलिंक नहीं है। देखो आपको मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। ओके सर खबर पड़ी। कैन CGST भी यूटिलाइज, नहीं, CGST सिर्फ CGST एंड IGST के लिए यूज हो पाएगी, एंड SGST और IGST के लिए। In the same way, UTGST can be utilized for UTGST and IGST. It can never be utilized for CGST. तो देखो CGST का क्रेडिट SGST UTGST के लिए नहीं हो सकता, SGST का क्रेडिट CGST UTGST के लिए नहीं हो सकता,
यूटीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के लिए नहीं हो सकता। ये सब चीजें 49(5) में लिखी है, बट यहाँ डैश कर दिया तो वो खत्म हो गई। ठीक है, यस सर। आया समझ में? ओके, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। તમિલનાડુના કેસમાં CGST નું પ્રોબ્લેમ ને થોડું ફરી બોલો ને મોટેથી. તમિલનાડુના કેસમાં IGST ની જે ક્રેડિટ લીધી છે ને એક ચોઈસ તમને તો તમિલનાડુ વાળા કેસમાં CGST નું ઓકે ઓકે, એ લોકોએ 8,500 લીધા છે. लेट अस सी तमिलनाडु वाला केस भी देख लेते हैं। सबसे पहले 2500 रुपया, देखो 2500 रुपया आईजीएसटी पे करना था, ये वाला, और आपके पास कितना पड़ा था? 16,000। ये बड़े भाई के पास रुपए पड़े थे, ये बड़े भाई को पे करना है, तो 16,000 में से सबसे पहले 2500 पे कर दिए, ये फर्स्ट। अब उसके बाद जो बचे वो कहाँ यूज किए? तो भाई एसजीएसटी एंड सीजीएसटी दोनों में यूज किए। अब ये बंदे ने सबसे पहले एसजीएसटी में यूज कर लिया, ऐसा कर सकते हो? हाँ कर लिया भाई। अब तो ऑर्डर है ही नहीं ना, मैंने बता दिया रैंक 2 जो है वही रहा है, रैंक 3 नहीं रहा है, तो आप एसजीएसटी भी पहले पे कर सकते हो। तो देखो ये जो 15,000 पड़े थे, सॉरी 16,000, तो 16,000 में से सबसे पहले 2500 इधर यूज किया, फिर दूसरी सीक्वेंस क्या है उसकी? ये वाली, ये सेकेंड नंबर। 2500 एंड 5,000 हो गए, तो अगर 16,000 में से 7,500 खत्म कर दो तो 8,500 बचेगा, वो 8,500 आपने इधर यूज किया। देखो ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर है। ओके, ये थर्ड नंबर किया आपने। सबसे पहले आईजीएसटी यूटिलाइज कर लिया। देखो ये कॉमन में क्या लिखा है, सबसे पहले आप आईजीएसटी यूज कर लो, तो ये आईजीएसटी यूज कर लिया तमिलनाडु में। अब क्या बचा? तो अब इधर 1500 पे करना बचा, इधर नील, इधर नील। अब मेरे को बताओ, मेरे पास एक्सेस आईटीसी अब कितना पड़ा है? ये यहाँ 13,000 पड़े हैं, ठीक है, ये 13,000 पड़े हैं। फिर यहाँ 1500 पड़े हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ 1500 पे करना है, 13,000 पड़े हैं, तो 11,500 आपके पास एक्सेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड। यहाँ नील पे करना है और 1500 पड़े हैं, तो ये पूरे 1500 आपके एक्सेस कैरिड फॉरवर्ड। समझ में आ गया? ની ક્રેડિટ એસ અથવા સી બંને માટે કોઈ બી યુઝ કરો પહેલા એવું? हाँ कोई भी यूज, और कोई भी सीक्वेंस में, कोई भी सीक्वेंस में यूज कर सकते हो। इसलिए तो मैंने बताया ना कि ये जो मेरा रैंक था, यहाँ थर्ड नंबर रैंक लिखा था, बट मैंने हटा दिया कि, और यहाँ ब्रैकेट कर दिया कि अब सेकंड नंबर में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी कहीं भी यूज कर लो। पहले यूटीजीएसटी कर सकते हो, एसजीएसटी भी कर सकते हो, सीजीएसटी भी कर सकते हो, कुछ भी। आईटीसी का मींस आईजीएसटी का एक्सेस क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज इन एनी रैंक फॉर दिस 3। ठीक है, ઓકે સર। ओके। अब देखो ये जो है ऑर्डर दिया है 49(8) में, आपको याद हो तो यहाँ हमने देखा था रेफरेंस बुक में, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग द लायबिलिटीज। ये सबसे पहले पास्ट पीरियड का आप यूज करना, फिर आप करंट पीरियड का यूज करना, एंड उसके बाद ये डिमांड वगैरह जो है उसका आप यूज करना। तो ये सीक्वेंस आपको 49(8) में दी है। तो ये देखो स्टेप 1, उसमें आप क्या करते हो? प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर ये करंट टैक्स पीरियड, एंड फिर डिमांड अंडर सेक्शन 73 एंड 74। ठीक है, तो 49(8) आ गया। इसका टाइटल आपने लिख दिया होगा, ना लिख दिया हो तो लिख देना इधर से, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग द लायबिलिटीज। 49(8) का टाइटल। 49(7) का भी टाइटल आपने लिखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ना लिख दिया हो तो लिख दो, मैंने आपके सामने खुला रखा है। एंड इवन 49(9) का भी आप लिख देना। ये रहा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। ये ना आप ये टाइटल्स लिख दो, तो आपके पास पूरा सेक्शन लिखा है अपने बुक में, तो आप ये टाइटल्स लिख दो, इससे इजी रह जाएगा, ये सेक्शन आपको पूरा याद रखना। और पॉसिबल है तो मेरे पास शायद इसका एक चार्ट पड़ा है, बट मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ है।
अगर होगा तो मैं आपको भेज दूंगा समरी के फॉर्म में व्हाट्सएप। लिख दिया है टाइटल? शैल आई गिव दिस स्लाइड या फिर अब मैं आगे करूं कुछ? हेलो बच्चे लोग बोलो यार कुछ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट सर। हाँ हाँ लिख दो। यस सर, हो गया। चलो आई थिंक ये आपका 49.9 भी हो गया है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने पढ़ा ली है, अब सीधा एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल 4 देखो। X Limited has following tax liabilities under the provision. देखो टैक्स लायबिलिटी अंडर CGST, SGST, UTGST, IGST फॉर सप्लाई मेड ड्यूरिंग द अगस्त। ये टैक्स लायबिलिटी है ना, अगस्त की। फिर ये इंटरेस्ट पेनल्टी दिया है, वो भी अगस्त महीने का है। फिर टैक्स लायबिलिटी आपको दी है सितंबर महीने की, मीन्स अगस्त के बाद सितंबर आता है। फिर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ये भी आपको क्या दिया है, सितंबर का। ठीक है, अब डिमांड आपको दिया है, ठीक है, जुलाई का पुराना है। एंड ये डिमांड और एक है जो ओल्ड प्रोविजन का है। ओल्ड प्रोविजन का मीन्स क्या, वो जो बिफोर जीएसटी था ना, एक्साइज सर्विस टैक्स कस्टम, उसका। एंड आपके पास कैश लेजर में 5 लाख पड़े हैं। अब ये 5 लाख का यूज करो। ये ऑर्डर है आपका जो आपको सेक्शन 49(8) में दिया है। तो ये पूरा क्वेश्चन 49(8) पे बना के दिया है ना। तो यहाँ सेक्शन 49(8) आप लिख दो, लिखना हो तो भाई 49 सब सेक्शन 8, उसके बेस पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर मीन सीक्वेंस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो 5 लाख है उसका पेमेंट सबसे पहले आप पुराना टैक्स पे करने के लिए करोगे। अब पुराने में क्या क्या आएगा, देखो पुराने में 1 लाख है और ये 20,000 है। तो सबसे पहले रैंक इसका, पहले टैक्स पे करने के लिए, फिर ये, फिर करंट पीरियड का। तो ये करंट पीरियड का, दैट इज यहाँ 3rd रैंक। फिर करंट पीरियड का इंटरेस्ट वगैरह, दैट इज 4th रैंक। अगर कुछ बचता है तो फिर पुराने पीरियड का, ये 8 लाख है, 1 लाख के लिए यहाँ 5वें नंबर का रैंक आएगा। आप है ना चेक कर लो, ये 5 लाख में से पहले 1 लाख हटाओ, फिर 20,000 हटाओ, फिर से 1,20,000 हटाओ, फिर 20,000 हटाओ। अब भी जो बचा 1,40 और 1,20 मीन्स कितना हुआ टोटल, 2,60,000। तो 5 लाख में से 2,60,000 माइनस करने के बाद जो बचता है उसमें से आप पिछले पीरियड का डिमांड का आप पेमेंट करो। तो देखो सबसे पहला रैंक ये, रैंक 1 पुराना, पुराना मीन्स अगस्त का, और अगस्त में भी सबसे पहले टैक्स, उसके बाद अगस्त का क्या, इंटरेस्ट पेनल्टी, दैट इज द सेकंड रैंक। यहाँ रैंक है, रैंक से बेटर है हम सीक्वेंस या ऑर्डर बोलते हैं। मैं रैंक नहीं बोलता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ इधर, ऑर्डर ऐसा लिखता हूँ, ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ पेमेंट आप अपने मॉड्यूल में लिखना हो तो लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। पहला ये अगस्त का, फिर सितंबर का, ठीक है, और उसमें सितंबर में भी पहले टैक्स का पेमेंट करना है, फिर इंटरेस्ट। तो ये नंबर 3, फिर ये नंबर, हेलो हेलो, बीच में कुछ चला गया था, अभी सुनाई दे रहा है? लैग हो गया था सर, अभी सुनाई दे रहा है कंप्लीट। कंप्लीट है ना? सुनाई दे रहा है। वो नेटवर्क का इशू आ गया था, मैंने BSNL थ्रू रन किया है ना इस बार, तो नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं। लेट मी शो यू, जस्ट चेक इट आउट।
तो ये रैंक देख लो 1 2 3 4 5, दिस इज द सीक्वेंस, है ना। सबसे पहले आपने पुराने पीरियड का टैक्स, फिर पुराने पीरियड का इंटरेस्ट, फिर करंट पीरियड का टैक्स, फिर करंट पीरियड का इंटरेस्ट, एंड लास्टली डिमांड। डिमांड का लास्ट नंबर है नंबर 3। अब ये सीक्वेंस कहाँ लिखी है, ये ऑर्डर कहाँ लिखा है, तो 49 8 में लिखा है। देखो पहला ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये। पहले में क्या था, प्रीवियस टैक्स पीरियड का, उसमें पहले टैक्स एंड देन अदर ड्यूज, फिर सेल्फ असेस टैक्स मींस करंट पीरियड का सेकंड रैंक, उसमें पहले टैक्स एंड देन अदर ड्यूज, फिर आप एनी अमाउंट अंडर दिस एक्ट एंड देन any other amount payable under this act or the rules made thereunder. ओके, अब इसके अंदर करंट एक्ट का डिमांड कौन सा है, देखो तो ये 8 लाख जो है ना उसका पेमेंट होगा। ये जो 1 लाख है वो तो प्रीवियस टैक्स है ना, ओल्डर एज पर द ओल्ड प्रोविजन, तो इसका इधर नहीं है कुछ, है ना। तो जो 8 लाख है उसमें उसका पेमेंट होगा। 8 लाख में से जो ये 240 है ना वो पे हो जाएगा, ठीक है। बट ये कहा अंडर CGST एक्ट, पुराने एक्ट का जो अभी भी 1 लाख रुपया बाकी था उसका पेमेंट बाकी ही रहेगा। ओके ओके, इसी तरह सुनाई दे रहा है अभी कंप्लीट, या अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है? थोड़ी हेलो हेलो हेलो, यस सर। कंप्लीट सुनाई दे रहा है ना अभी? यस सर। हाँ मैंने नेटवर्क चेंज किया। ओके चलो बहुत अच्छे। तो यहाँ आपका ये ऑर्डर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 4 सेक्शन 49(8) पे बना था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये हमने कर लिया। अब है ना, आप देखो टोटल अमाउंट 5,60,000 इज पेंडिंग। अब जो 8 लाख था बराबर है, 8 लाख जीएसटी का पे करना बाकी था, उसमें से डिमांड नोटिस का 2.4 लाख हमने भरा, ठीक है। तो अभी बचा कितना, 5.6 लाख। ओके, तो ये 5.6 लाख अभी हमारा बाकी है, वो हम भरेंगे। तो देखो इसके बारे में ये नोट पढ़ो, the balance amount of 5,60,000 towards demand under section 73-74 of CGST to be discharged before discharging the liability of demand arose under the old provision of IDT। ठीक है, मीन्स यहाँ कहने का मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास थोड़े ज्यादा रुपए पड़े होते तो मैं सबसे पहले क्या पे करता, जीएसटी का जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है ना वो पहले पे करता, और अभी भी कुछ बचता तो फिर मैं उसमें से पास्ट एक्ट का कोई बाकी होता, जैसे कि ये प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ भी बाकी है, सर्विस टैक्स या एक्साइज का, तो उसका मैं यूज कर पाता। तो दीज आर द प्रोविजंस, है ना। ये पेमेंट वाला जो है आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कवर हो गया है। अब 49A हमने पढ़ लिया है, 49A, ठीक है। यहाँ क्या था, फर्स्ट बीन यूटिलाइज फुल्ली टुवर्ड सच पेमेंट, कहाँ गए, एक मिनट। इनपुट टैक्स क्रेडिट 49A क्या था, ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ, पहले क्या, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स, only after the input tax credit available on account of integrated tax has been first fully utilized। मीन्स ये पॉइंट 49A क्या बता रहा है कि अगर बड़े भाई के पूरे रुपए खाली हो गए आईजीएसटी के, तभी ही सीजीएसटी का क्रेडिट यूज होगा, तभी ही एसजीएसटी का क्रेडिट यूज होगा, तब तक उसका क्रेडिट भी यूज नहीं होगा। सबसे पहले आईजीएसटी यूज कर लो। अब 49B क्या बता रहा है, ये नया है 49B बता रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर और अंडर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लोज ई एंड क्लोज एफ व्हाटएवर 49(5)
द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल प्रिस्क्राइब, मीन्स गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, क्या प्रिस्क्राइब करेगी, ऑर्डर एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ सच टैक्स। मीन्स किसकी बात कर रही है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर 49(5) E and F, 49(5) E and F, 49(5) E and F मीन्स क्या, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सब लोग देख लो इधर, 49(5) का E and F, आजा 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 आजा, हाँ ये रहा 49(5) E and 49(5) F। क्या लिखा है, सेंट्रल टैक्स shall not be utilized for state tax or union territory tax. In the same way, state tax or union territory tax shall not be utilized for the payment of central tax. तो ये जो था उसको साइड पे रखो, बाकी का ऑर्डर अगर गवर्नमेंट चाहे तो चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास अभी भी अमर्यादित सत्ता है, वो चाहे उस हिसाब से नई प्रोविजन बना सकता है एंड ये ऑर्डर डिसाइड कर सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक प्रोविजन। तो ये 49(9) तक हमने इधर से देख लिया था। आई थिंक इधर रेफरेंस बुक में से आगे हमने देखा था 49(9) के बाद का आगे का नहीं, 49A भी देख लिया अभी नहीं नहीं, कुछ चीज रह गई है ना, वो मैं अभी बताता हूँ। इन्होंने है ना डायरेक्टली रूल्स चालू कर दिए हैं रेफरेंस बुक में। मैं आपको हमारी इसमें ले जाता हूँ मॉड्यूल में, और उधर देखो 49(10) एंड 49(11) दो चीज है। क्या लिखा है 49(10) में और 49(11) में। ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि जीएसटी में आज के दिन में इधर ही छोड़ दूं, है ना, थोड़ा लंबा सेशन हो गया है हमारा, और टैक्सेशन में क्या बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है, तो कभी कभी इट वुड बी डिफिकल्ट, है ना, डाइजेस्ट करना। कुछ लोगों का फिर